صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور آپ کی حالات زندگی اس امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوئے، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح چمکے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت بنے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت و تعریف بیان فرمائی ہے، ان کے بہترین عمل، عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دنیا میں ہی اپنی رضا کی خوشخبری سنائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت و توقیر کا حکم دیا، فرمایا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ مشکات المصابیح۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ان مقدس ہستیوں پر اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم و فضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کی پاکیزہ حیات کا مطالعہ کریں۔ اس میں گرامی اور لقب و کنیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرمی معاویہ ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام معاویہ تھا، جیسا کہ شرح بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، معاویہ نام کے 20 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ جب مطلقاً معاویہ بولا جائے تو اس سے مراد حضرات امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اے لقب ناصر الدین یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہے، اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ کے حق کے مددگار بھی آپ کا لقب ہے، اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ عمدۃ القاری۔ ولادت شرح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارک 604 عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ سلسلہ نسب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ملاحظہ فرمائیں، محمد بن عبداللہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کی حالات زندگی اور آپ کی کرامات۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، معاویہ بن ابو سفیان سکر بن حرب بن امیہ بن عبد شمش بن عبد مناف۔ اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ کا نسب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمش بن عبد مناف۔ اسی لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نسبی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اساد الغابہ۔ والدین کا تعارف اور قبول اسلام۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان اور والدہ حضرت سیدہ ہند رضی اللہ عنہما نے فتح مکہ 8 ہجری مطابق 629 عیسوی کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ زرقانی۔ سیدنا ابو سفیان کی قربانیاں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے جزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد تمام قبائل کی متفقہ رائے سے سردار مکہ منتخب چننا ہوئے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دارالامان یعنی امن و چین کا گھر قرار دے کر آپ کو خصوصی
इख्तियार से नवाजा। हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी तमाम तर कोशिशें दीन इस्लाम की सरबुलंदी में सर फरमाई। इस दौरान आपने बहुत कुर्बानियां दी और अपनी जुर्रत व बहादुरी का अमली मुजाहिरा फरमाया, यहाँ तक कि अपनी दोनों आंखें रहे खुदा में कुर्बान कर दी। जैसा कि हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु जज़्वे हुनैन में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको माले गनीमत से 100 ऊँट और 40 उकिया अता फरमाए और आपके दोनों फर्जंद हजरत सैयदना अमीर मुआविया और हजरत सैयदना यजीद बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हुमा को भी इतना ही अत फरमाया। जज़्वे ताइफ में भी आपने शिरकत की और उसमें आपकी एक आँख शहीद हो गई, आपकी दूसरी आँख जंगे यरमुक में शहीद हुई। याद रहे जंगे यरमुक के सिपह सालार हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु के फर्जंद हजरत सैयदना यजीद बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हु थे। ये यजीद पलीद के चाचा थे, वो बदबख्त था लेकिन वालिद और चचा खुशबख्त थे। दोनों आंखों का रहे खुदा में शहीद हो जाना ये किस कदर अजमत की बात है। लखते जिगर बारगाहे रिसालत में एक मौके पर हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु ने बारगाहे रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी 3 बातें कबूल फरमाए। एक उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान अरब में सबसे हसीन व जमील हैं, मैं उनका निकाह आपसे करता हूँ। दूसरी मुआविया को अपना कातिब बना लीजिए। तीसरी मुझे लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमा दीजिए ताकि मैं कुफार से ऐसे ही लड़ूं जैसे मुसलमानों से लड़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सवाल पर रजामंदी का इजहार फरमाया। हजरत सैयदना अबू जुमैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु आपसे सवाल न करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता न फरमाते। आपकी आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साइल का सवाल रद्द नहीं फरमाते थे। मुस्लिम शरीफ। हजरत सैयदा हिंद की प्यारे आका से मोहब्बत। हजरत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु की तरह हजरत सैयदा बिनते उतबा रदियल्लाहु अन्हु ने भी कबूल इस्लाम के बाद अपनी तमाम तर कोशिशें दीन इस्लाम की सरबुलंदी में सर्फ फरमा दी। आप भी सहाबियात में दाखिल हो गईं और हुजूर अलैहिस्सलाम को सरे जहां से बढ़कर चाहने लगी, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं। हिंदा बिनते उतबा नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने से पहले रुए ज़मीन पर आपके घर वालों से ज़्यादा किसी घर वालों का रुसवा होना मुझे महबूब न था, मगर अब मेरा ये हाल है कि रुए ज़मीन पर आपके घर वालों से ज़्यादा किसी घर वालों का इज़्ज़तदार होना मुझे पसंद नहीं। बुखारी शरीफ। सूरत व सीरत मुबारका। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु दराज कामत थे, आपका रंग सफ़ेद व खूबसूरत और शख्सियत रोअबदार थी। सर और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी लगाया करते थे जिसके रंग के सबब दाढ़ी सोने की तरह मालूम होती थी। आप हलीम, बुर्दबार, बावकार, मालदार और लोगों में सरदार थे, करम फरमाने वाले और बहरे सूरत इंसाफ करने वाले। अल बिदाया व निहाया। हजरत सैयदना अबुल हसन अली बिन मोहम्मद जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु बहुत खूबसूरत थे और गोरे रंग वाले, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, मुआविया अरब के किसरा हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु अक्सर काला अमामा बांधते थे। मिरअतुल मनाजी। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की जवानी और ज़मानाए जाहिलियत। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की विलादत हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले मक्का में हुई। इस हिसाब से आपकी उम्र 18 साल थी और आप जवान थे, लेकिन सरदार मक्का के घर में तरबियत पाने और कुफ्फारे मक्का के दरमियान रहने के बावजूद इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों और जंगों में आपकी शमूलियत नहीं, यानी ज़मानाए जाहिलियत में आपका दामन इज़ाए मुस्लिम के बदनुमा दाग से पाक व साफ रहा। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु जब छोटे थे तो मुशरिकीन मक्का ने आपके सामने हजरत सैयदना खुबैब रदियल्लाहु अन्हु को सूली पर खड़ा किया तो आपने अहले मक्का के लिए बद दुआ की। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरे बाप ने ज़मीन पर लिटा दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर ज़मीन पर लेट जाए तो बद दुआ का असर नहीं होता। इस बद दुआ से सुफियान रदियल्लाहु अन्हु पर एक बेचैनी तारी हो गई। मुझ पर इस बद दुआ का ये असर हुआ कि कई सालों तक मेरी शोहरत खत्म हो गई कि जितने आदमी भी सूली पर चढ़ाते वक्त मौजूद थे 1 साल के अंदर अंदर सब मर खप गए। शवाहिदु नबुव्वत औलाद व अज़वाज। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के निकाह में 4 खवातीन आईं जिनसे अल्लाह ताला ने औलाद भी अता फरमाई। मैसूम बिनते बहदल, अल्लाह ताला ने आपको बेपना फ़हिम, अक्ल और तकवा, परहेज़गारी जैसी आला सिफ़ात से नवाजा था। शरीयत के मामले में आप बेहद मुहतात थीं। आपका शुमार ताबियात में होता है, जैसा हजरत सैयदना हसन बिन मोहम्मद सनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
मैसून बिनते बहदल अमीर मुआविया की ज़ौजा हैं और ताबीयात में शामिल हैं। अक्सर औलाद इन्हीं से है। यजीद, अमाता, रब्बिल मशरिक, रमला, हिंद, फाख्ता बिनते कराजा, इनसे हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की 2 औलादें हुई, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। कनूद बिनते कराजा ये फाख्ता बिनते कराजा की बहन है। रूम के एक जजीरे कुबर्स की फतेह के वक्त ये सैयदना अमीर मुआविया के साथ थी। नाइला बिनते अमारा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने आला सिफ़ात का मालिक बनाया, आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा, और ऐसा क्यों न होता कि आप नबी रहमत कसीमे नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शरफ रखते हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु अखलाके हसना के जामे और अखलाके राजिला से कोसों दूर और इस्लाम का मिनराए मीनाराए नूर थे। अपनी ताज़ीम पसंद न फरमाते। हज़रत सैयदना अबू मिजलज रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा के पास तशरीफ़ लाए तो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर ताज़िमन खड़े हो गए, जबकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर जो सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर से ज़्यादा भरी जिस्म वाले थे, अपने वज़न के सबब बैठे रहे। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो शख्स इस बात को पसंद करे कि लोग उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हों, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इस हदीस पाक के तहत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस फरमाने आली में हुजूर ने तमाम अंसार को 2 हुक्म दिए, एक हज़रत सैयदना साद की ताज़ीम के लिए खड़ा होना, दूसरे उनके इस्तकबाल के लिए कुछ आगे जाना, उनको लेकर आना बुजुर्गों की आमद पर। ये दोनों काम यानी क़याम ताज़ीमी और इस तकबाले किबला जायज़ बल्कि सुन्नते सहाबा है, हुजूर की सुन्नते कौली भी है। मुफ्ती साहब और फरमाते हैं, जमहूर उलमा इस हदीस की बिना पर फरमाया है, बुजुर्गों के लिए क़याम ताज़ीमी मुस्तहब है। हुजूर ने हज़रत अकरमा इब्ने अबू जाहिल और हज़रत इब्ने अबी हातिम की आमद पर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए क़याम फरमाया। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा हुजूर अनवर की तशरीफ़ आवरी पर ताज़ीमी क़याम करती थी। सहाबाए किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़याम ताज़ीमी बारहा किया। मिरअतुल मनाजी सबसे ज़्यादा हली मुत्तबा हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, हज़रत सैयदना मुआविया बिन अबू सुफ़ियान लोगों में सबसे ज़्यादा हौसला मंद और सबसे ज़्यादा हली मुत्तबा हैं। हाज़रीन मजलिस ने अर्ज़ की, किया अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी ज़्यादा? तो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से बहुत बेहतर और अफजल हैं, लेकिन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया ज़्यादा हलीम बुर्दबार हैं। गुस्सा बर्दाश्त कर लेना और गुस्सा दिलाने वाली बातों पर गुस्सा न करना बुर्दबारी कहलाता है। फैजान अमीर मुआविया सबसे बड़ा सरदार कौन? हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में सवाल हुआ, सबसे बड़ा सरदार कौन? फरमाया, जब कुछ मांगा जाए तो सबसे बढ़कर सखी हो, महफिल में हुस्ने अखलाक के एतबार से अच्छा हो और उसे जितना हकीर समझा जाए तो उतना ही हिल्म व बुर्दबारी का मुजाहिरा करे, किसी से जाति दुश्मनी न रखते। हज़रत सैयदना अबू असवद रहमतुल्लाह अलैह जंगे जमल में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करामल्लाहु वजहुल करीम के साथ थे, लेकिन जंग खत्म होने के बाद हज़रत सैयदना अबू असवद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने उन्हें अपने पास बिठाया और कीमती तहाइफ से भी नवाजा। सियर अलामुल नुबला कैसारिया का फतेह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में आपने मानीन ज़कात, मुनकिरीन खत्म नबुव्वत, झूठे मुद्दियान नबुव्वत और मुर्तदी के खिलाफ जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया और कई कारनामे अंजाम दिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जो फुतूहात हुई उसमें हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का नुमाया किरदार रहा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु जिहाद व फुतूहात में मसरूफ़ रहे। आपने रूमियों को शिकस्त फाश देकर तराबुल्स, शाम, अंताकिया
और दीगर इलाकों को हुदूद नसरानियत से निकालकर इस्लामी सल्तनत में शामिल फरमाया। एक रिवायत में जिक्र किया जाता है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को कैसारिया, रूम का एक बहुत बड़ा शहर के महाज के लिए अमीर मुकर्रर किया और उनकी जानिब एक खत भेजा, हमदो सलात के बाद मैंने तुम्हें कैसारिया का वाली हाकिम मुकर्रर किया। तुम अल्लाह से मदद तलब करते हुए मुकाबले के लिए इस इलाके की तरफ जाओ, लाहौल का विर्द करते रहो, क्योंकि अल्लाह ही हमारा रब है, इसी पर हमारा भरोसा, वही हमारी उम्मीदों का मरकज है, वही हमारा मौला है। क्या ही अच्छा मौला और क्या ही अच्छा मददगार है। फिर हजरत सैयदना अमीर मुआविया ने कैसरिया की जानिब लश्कर कशी फरमाई और कैसारिया का मुहासिरा कर लिया और कई मर्तबा दुश्मन की तरफ आगे बढ़े और जंग का आगाज हुआ और आपने उसमें निहायत ही शुजाअत व बहादुरी का मुजाहिरा फरमाया। इस जंग में अल्लाह में आपको अजीमुश्शान फतेह से सरफराज फरमाया। अल-बिदाया व निहाया सबसे अच्छे अखलाक वाला हाकिम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मेरी नज़र में कोई ऐसा हाकिम नहीं गुजरा जो हुस्ने अखलाक में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से बढ़कर हो। लोग उन्हें कुशादा वादी के किनारों से दूर करते हैं, यानी तरह तरह की बातें करके उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, मगर वो तंगी और रुकावट की वजह से न तो गजबनाक होते हैं और न बुरे अखलाक अपनाते हैं। तारिक इब्ने असाकर। उम्मत की खैर ख्वाही का जज्बा। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने अबू हब्श नामी एक शख्स को सिर्फ इसलिए मुतय्यन कर रखा था कि वो लोगों के पास जाए और दरियाफ्त करे, क्या आज किसी के यहाँ बच्चे की विलादत तो नहीं हुई या कोई वफ्द तो नहीं आया, ताकि बैतुल माल से वजीफा जारी करने के लिए उनका नाम लिख लिया जाए। अल-बिदाया व निहाया। हाजियों और गरीब रोज़ादारों का इंतज़ाम। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने मक्का मुकर्रमा में लंगर खाना कायम फरमाया, जिसमें हाजियों और रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़कीरों के लिए खाना पकाया जाता था। अखबार मक्का ज़रकानी फ़िक़ह व इज्तिहाद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की फ़कीहाना सलाहियतों के पेशे नज़र आपको फ़कीह मुज्तहिद फरमाया। बुखारी शरीफ। आशूरे का रोज़ा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आशूरे के रोज़ 10 मुहर्रम की तारीख को रोज़ा रखने का एहतिमाम फरमाते और उसकी तरकीब भी दिलाते थे। मुस्लिम शरीफ। ज़ियारते कुबूर की सुन्नत फरमाई। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु जब अपने ज़माने खिलाफत में हज या उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए और मदीना मुनव्वरा हाजिरी हुई, तो आप भी इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे से शोहदाए उहद की कुबूर पर तशरीफ़ ले गए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म और सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु का साल में एक मर्तबा शोहदाए उहद के मज़ारात पर जाने का मामूल था। फैजान अमीर मुआविया कातिबे वही हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का शुमार अरब के उन लोगों में होता था जो लिखना पढ़ना जानते थे और सलाहियत व काबिलियत में अपना एक मकाम रखते थे। जब आप दौलते ईमान से शरफ याब हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना कास कुर्ब अता फरमाया। फतेह मक्का के बाद आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे और तमाम गज़वात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह फरमाते रहे। कुरान मजीद को महफूज रखने के ज़राए में से एक अहम ज़रिया किताबते वही था, यानी ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा होने वाली आयत कुरानी को लिखकर महफूज करना। इस अहम तरीन काम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 40 सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान पर मुश्तमिल एक जमात मुकर्रर कर रखी थी, जो बारगाहे रिसालत में वही लिखते थे कि मुक़द्दस नाम से जानी जाती थी, जिनमें से कुछ के अस्माए मुक़द्दसा ये हैं: हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, हज़रत सैयदना आमिर बिन फुहीरा, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अरकम, हज़रत सैयदना उबाई बिन कअब, हज़रत सैयदना साबित बिन कैस, हज़रत सैयदना खालिद बिन सईद, हज़रत सैयदना हंज़ला बिन रबी असादी, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया बिन सुफ़ियान और हज़रत सैयदना शरहबील बिन हसना वगैरह हुम अलैहिमुर रिज़वान। बाज़ उलमा ने फरमाया हज़रत सैयदना अमीर मुआविया बिन सुफ़ियान रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु सिर्फ़ और सिर्फ़ वही लिखने पर मामूर थे। मदारिजुन नबुव्वत यजीद की गिरफ्त। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया बिन सुफ़ियान रदियल्लाहु अन्हु कोई खिलाफ़े शरीयत
काम देखकर पस व पेश से काम न लेते थे और न ही अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों से इस मामले में नर्म रवैया इख्तियार फरमाते बल्कि फ़ौरन इस्लाह की कोशिश फरमाते। जैसा कि एक दिन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने ये मंजर मुलाहिज़ा फरमाया कि आपका बेटा यजीद अपने गुलाम को मार रहा है, तो सख्त लहजे में इरशाद फरमाया, जान ले जितनी कुदरत तू इस गुलाम पर रखता है इससे ज़्यादा अल्लाह तुझ पर रखता है। तेरा बुरा हो तू ऐसे शख्स को मार रहा है जो तुझे रोकने की ताकत नहीं रखता है। अल्लाह की कसम में ताकत व कुदरत के बावजूद कीना रखने वालों से इंतकाम लेने से रुका हुआ हूँ, क्योंकि ताकत के बावजूद माफ़ कर देना ही ज़्यादा अच्छा है। अलबिदाया व निहाया। शैतान ने नमाज के लिए जगाया। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में बयान फरमाते हैं, एक रोज़ हज़रत अमीर मुआविया के महल में दाखिल होकर किसी ने आपको नमाज फ़जर के लिए बेदार किया तो आपने दरियाफ्त फरमाया, तू कौन है और किस लिए तूने मुझे जगाया है? तो उसने जवाब दिया, ए अमीर मुआविया, मैं शैतान हूँ। आपने हैरान होकर पूछा, ए शैतान, तेरा काम तो इंसान से गुनाह कराना है और तूने मुझे नमाज के लिए जगाकर मुझे नेक अमल करने का मौका दिया, उसकी वजह क्या है? तो शैतान हीलो बहानों से बात टालने लगा। कभी अपने नेक होने का दावा करता और कभी कहता मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है, कभी कहता मैं नेकी की दावत देना पसंद करता हूँ, तो कभी कहता कि मैं हमेशा से ही नेक हूँ। मगर अमीर मुआविया ने उसे पकड़े रखा और जब तक हकीकत हाल से आगाह न हुए न छोड़ा। बिला आखिर इस मरदूद ने बता दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जानता हूँ कि अगर सोते रहने में आपकी नमाज फजर कज़ा हो जाती तो आप खौफ खुदा से इस कद्र रोते और इस कसरत से तौबा व इस्तगफार करते कि खुदा की रहमत आपको बेगरारी व गिरयोजारी पर रहीम आ जाता और वो आपकी कज़ा नमाज कबूल फरमाकर अदा नमाज से हज़ारों गुनाह ज़्यादा अजर सवाब अता फरमा देता। जैसा कि मुझे खुदा के नेक बंदों से बुग़्ज़ व हसद है, इसलिए मैंने आपको जगा दिया ताकि आपको कुछ ज़्यादा सवाब न मिल सके। मसनवी शरीफ सादगी। हज़रत सैयदना यूनुस बिन हलबस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को खच्चर पर सवार देखा, आपके साथ खादिम भी सवार था। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने पेबंद लगी हुई कमीज पहने हुए थे और इस हालत में आप दमिश्क के बाजार का दौरा कर रहे थे। तारिक इब्ने असाकर। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की चादर से मोहब्बत। हज़रत सैयदना कअब बिन ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में एक कसीदा लिखकर बारगाहे रिसालत में सुनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर अपनी चादर मुबारक इनायत फरमाई। हज़रत सैयदना कअब बिन ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने ये मुक़द्दस चादर उनके साहबजादे से 20,000 दिरहम के बदले खरीद ली। आपके बाद तमाम खुलफा-ई-दैन में वही चादर ओढ़कर निकलते। अरसे दराज तक वो चादर सलातीन इस्लाम के पास एक मुक़द्दस तबर्रुक के तौर पर बाकी रही। सैयदना अमीर मुआविया का बेमिसाल कफन। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता, एक तहबंद, एक चादर और कुछ मुए मुबारक थे, दाढ़ी के बाल। आपने अपनी वफ़ात इंतकाल के वक्त वसीयत फरमाई कि इन मुक़द्दस कपड़ों में मुझे कफन दिया जाए और नाखून शरीफ व मुए मुबारक, दाढ़ी के बाल मेरे चेहरे और आँखों पर और मेरे सीने पर रख दिए जाए, फिर मुझे खुदा के सुपुर्द कर दिया जाए। मदारिजुन नबुव्वत। प्यारे इस्लामी भाइयों, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलियाए किराम से मंसूब चीज़ों की बरकतों के क्या कहने। जैसा कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ की बरकत से हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की रोशनी लौट आई। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान। फिर जब खुशी सुनाने वाला आया उसने वो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाला, उसी वक्त उसकी आंखें रोशन हो गईं। कहा, मैं न कहता था कि मुझे अल्लाह की वो शान मालूम है जो तुम नहीं जानते। और हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद इस कुर्ते को अपने वालिदे मुहतरम की आंखों पर डालने का हुक्म दिया था। जैसा कि इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, उसे मेरे बाप के मुंह पर डालो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। मकामे हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक के बाल कटवाकर खजूर के दरख्त पर रख दिए। वहाँ मौजूद सहाबे किराम अलैहिमुर्रिज़वान इस पेड़ के नीचे जमा हो गए और मुए मुबारक हासिल करने में एक दूसरे से पहल करने लगे। हज़रत सैयदा उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने भी चंद मुए मुबारक हासिल कर लिए। जब कोई बीमार होता तो मैं इन मुबारक बालों को पानी में डबो कर वो पानी मरीज को पिलाती तो अल्लाह उसे सेहत अता कर देता। इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों के तबरुकात की बड़ी बरकतें होती हैं।
मदारिजुन नबुव्वत तुझे बुराई नहीं पहुंचेगी। जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के कुछ बाल हासिल किए तो नबी रहमत शाफ़िए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इरशाद फरमाया, ए अबू अयूब तुझे बुराई नहीं पहुंचेगी। मुसद्दरक हाकिम। अली मुर्तज़ा मुझसे अफजल हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु की बारगाह में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु का तज़किरा हुआ तो आपने फरमाया, खुदा की कसम जब अली मुर्तज़ा कलाम फरमाते तो आपकी आवाज़ में शेर की सी गर्ज होती, जब ज़ाहिर होते तो चांद की तरह रोशन होते और जब नवाजते तो बारिश की तरह बेइंतहा अता फरमाते। बाज़ हज़रात ने पूछा कि आप अफजल हैं या हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु? फरमाया, हज़रत सैयदना अली के नुकूश भी आले अबू सुफियान से बेहतर हैं। फिर फरमाया, जो शख्स हज़रत अली मुर्तज़ा की तारीफ में शेर सुनाए मैं उसको हर शेर के बदले 1000 दीनार इनाम दूंगा। हाज़रीन ने शेर सुनाए। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते थे, इन अशार में जो आपने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु की शान व अज़मत बयान की, आप इससे भी ज़्यादा अफजल हैं। फिर हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली मुर्तज़ा की शानो अज़मत में कई अशार पढ़े। फैजान अमीर मुआविया में अली से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया अलैहिमुर्रिज़वान भी मौजूद थे। अचानक हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया से फरमाया, ए मुआविया, किया तुम अली से मोहब्बत करते हो? हज़रत अमीर मुआविया ने अर्ज़ की, उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह के लिए उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम दोनों के दरमियान आजमाइश होगी। अमीर मुआविया ने अर्ज़ की, ए रसूल अल्लाह, उसके बाद किया होगा? हुजूर ने फरमाया, उसके बाद अल्लाह की माफ़ी, उसकी रज़ामंदी और जन्नत में दाखिला। अमीर मुआविया ने अर्ज़ की, हम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हैं। फैजान अमीर मुआविया शेर खुदा पर आबदीद हो गए। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को जब अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर मिली तो निहायत रंजीदा हुए, रोने लगे और फरमाया, लोगों ने फ़ज़्ल फ़िक़्ह और इल्म से कितना कुछ खो दिया है। अल बिदाया व निहाया। फ़ज़ाइल इमाम हसन बज़बान अमीर मुआविया। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने अपने हम नशीनों से फरमाया, आबो अजदाद, चचा, फूफी और मामू व खालू के एतबार से लोगों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ कौन है? सब ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन ज़्यादा जानते हैं। हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु का दस्ते मुबारक थामा और इरशाद फरमाया, ये हैं इनके वालिद सैयदना अली बिन अबी तालिब, वालिदा सैयदा फ़ातिमा, इनके नाना अल्लाह के रसूल सैयदा खदीजा, इनकी नानी जान सैयदना जाफ़र, इनके चचा हैं सैयदा हाला बिनते अबी तालिब, इनकी फूफी जान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद इनके मामू और खलाएं हैं। एक और मकाम पर अमीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने नबी करीम को देखा कि आप हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु अन्हु की ज़बान ए होंठ मुबारक का बोसा ले रहे हैं। बेशक जिस ज़बान या होंठ को अल्लाह के रसूल ने चूमा उसे हरगिज़ अज़ाब नहीं दिया जाएगा। मुसंद अहमद। सहाबा की फ़जीलत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें निशाना न बनाना, क्योंकि जिसने उनसे मोहब्बत की तो उसने मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे दुश्मनी रखी तो उसने मेरी दुश्मनी की वजह से दुश्मनी रखी, और जिसने उन्हें सताया उसने मुझे सताया, और जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को इज़ा दी, और जिसने अल्लाह को इज़ा दी तो करीब है कि अल्लाह उसकी पकड़ फरमा ले। तिर्मिज़ी शरीफ। खुद हुजूर ने अमीर मुआविया को दुआ दी। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी, हिदायत देने वाला, महदी, हिदायत पाने वाला बना दे और इनके ज़रिए से लोगों को हिदायत दे। तिर्मिज़ी शरीफ। किताब व हिकमत सिखा दे। हज़रत सैयदना इरबाज़ बिन सारिया रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म और हिकमत सिखा और उसे अज़ाब से बचा। मुजम कबीर। रसूल के राज़दार।
हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशराए मुबशराए के फ़ज़ाइल बयान फरमाए और हज़रत अमीर मुआविया का भी यूँ ज़िक्र फरमाया। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान मेरे राज़दारों में से है, जिसने इन तमाम से मोहब्बत की वो निजात पा गया और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा हलाक हो गया। अमीर मुआविया जन्नती है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। तो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। दूसरे दिन फिर इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। तो फिर हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। तीसरे दिन भी यही इरशाद फरमाया। तो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। फैजान अमीर मुआविया मोमिनों के मामू हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की बहन हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा हुज़ूर नबी रहमत शफ़ीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, बीवी और उम्मुल मोमिनीन होने की वजह से तमाम मोमिनीन की माँ है। इसलिए जलीलुल क़द्र उलमा व मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को मोमिनों के मामू लिखा है। दुर्रे मंसूर शातिमे सहाबी को सजा। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन मैसरा रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, मैंने नहीं देखा कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में अमीर मुआविया को बुरा भला कहने वाले के अलावा किसी और को भी कोड़े लगाए हो। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदियल्लाहु अन्हु ने खुद उस शख्स को 3 कोड़े मारे जिसने आपके सामने अमीर मुआविया पर सब्बो शतम, बुरा भला गाली गलौज। अल इस्तियाब अमीर मुआविया की शान। हज़रत सैयदना अल्लामा नूरुद्दीन मुल्ला अली बिन सुल्तान कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का शुमार आदिल, फाजिल और बड़े बड़े साहब किराम अलैहिमुर रिज़वान में होता है। अमीर मुआविया की अज़मत। हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने सहाबा किराम की इज़्ज़त पर हालमा किया, यकीनन उसने अपने ईमान पर हमला किया, इसीलिए उसका सद्दे बाब लाजिम है। खास तौर पर हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत सैयदना अमर बिन आस के हवाले से ज़्यादा अहम है। शान अमीर मुआविया बज़बान अल्लामा यूसुफ़ नबहानी। हज़रत अल्लामा यूसुफ़ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया तमाम ताबईन रदियल्लाहु अन्हुम से अफजल हैं, क्योंकि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शरफ हासिल है। आपने किताबते वही का अहम काम भी अंजाम दिया। फैजान अमीर मुआविया नबी के तबर्रुक से मोहब्बत। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने मर्जुल मौत इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल को वुज़ू कराता था। एक रोज़ आपने मुझसे इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें कमीज़ न पहनाऊं? मैंने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान क्यों नहीं? तो हुजूर ने अपने जिस्म अतहर से कमीज़ उतार दी और मुझे पहना दी। मैंने उसे संभाल कर रख लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नाखून काटे तो मैंने वो कटे हुए नाखून ले लिए और एक शीशी में रख लिए। तो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इसी कमीज़ को मेरे बदन के साथ मिला देना और इन नाखूनों को बारीक करके मेरी आँखों पर रख देना। मुमकिन है कि अल्लाह ताला इन तबर्रुक के सबब मुझ पे रहम फरमाया। तारिक इब्ने असाकर। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का विसाल। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की वफ़ात बरोज़ जुमेरात माह रजब 22 तारीख 60 हिजरी में मुल्क शाम के मशहूर शहर दमिश्क में हुई। उस वक्त आपकी उम्र 78 साल की थी। तारीकुल खुलफा। विसाल मुबारक की तारीख। मुअर्रिकीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का विसाल मुबारक माह रजब 60 हिजरी में हुआ, लेकिन तारीखें विसाल में इख्तिलाफ है। हज़रत सैयदना सुलेमान बिन अहमद तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत सैयदना नूरुद्दीन अली बिन अबू बकर है स्मी रहमतुल्लाह अलैहि की जिक्र करदा रिवायत और इमाम यूसुफ़ बिन ज़की रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का विसाल मुबारक 4 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में हुआ। कुछ मुअर्रिकीन के नज़दीक आपका विसाल 15 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में हुआ और बाज़ के नज़दीक विसाल मुबारक 22 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में हुआ और यही कौल ज़्यादा मशहूर है। तारिक इब्ने असाकर। तारिकुल खुलफा। तमाम मोमिनीन हज़रात से गुजारिश है कि रजबुल मुरज्जब 22 तारीख को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की फ़ातिहा दिलाए और सवाब दारैन के हकदार बने। हवाला फैजान अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु। तारीकुल